Hello everyone, myself Adesh Yadav, and today is our fourth lecture of Basics of Organic Chemistry. In last lecture, we had discussed the calculation of sigma and pi bond. Okay, so in this lecture, we will discuss the hybridizations of organic molecules. So first of all, what is hybridization? Hybridization is the concept of mixing atomic orbital into new hybrid orbitals. It means we have the concept in which atomic orbitals are mixed, and after mixing of atomic orbitals they form new hybrid orbitals. So this topic in organic is just calculation of hybridization, nothing else. We will not discuss in detail. In organic chemistry, in chemical bonding, we discuss the hybridization topic in detail, how it happens with complete structure formula. But for organic, it is just a simple calculation of sigma bonds. So hybridization is calculated for the central atom, and how we calculate? It is just number of sigma bond plus lone pair. In organic molecules, mostly 99.9% molecule does not have lone pair. Only some nitrogen or oxygen like families has lone pair present. So mainly we have to focus the number of sigma bonds. Just calculate the number of sigma bonds and you will find the hybridization of that molecule. Or if the lone pair is present, then just add the lone pair. Now what is the steric number? Number of hybrid orbitals involved in hybridization. कितनी hybrid orbitals हमारे पास involve हो रही है hybridization में? It is just a steric number. It may be s orbital, it may be p orbital. In p orbital we have 3 p orbital, px, py and pz. Okay, so this is the steric number. Just for hybridization sp, the steric number is 2. For hybridization sp2, the steric number is 3. For hybridization sp3, the steric number is 4. Just like this, there is a involvement of s and p hybrid orbital, then there is a steric number 2. For the hybridization sp2, there is a s plus 2p orbital. It may be px or py. Then the steric number is 3. For the hybridization sp3, the steric number is s plus 3p. It may be px, py or pz. The steric number is 4. 1, 2, 3, 4. Then we have told you that the steric number is just the calculation of the total number of hybrid orbital involved in the hybridization. The number of hybrid orbitals involved in sp3 is s, px, py and pz. The steric number is 4. Let's discuss some example. In CH4, first draw the CH4 in expanded form. This is the CH4. For hybridization we know the number of sigma bonds. Just calculate the number of sigma bond. This is the one sigma bond. This is the one carbon and hydrogen. This is the one sigma bond. This is the one sigma bond between carbon and hydrogen, and this is the another sigma bond between carbon and hydrogen. There is a total number of sigma bond 4. 1, 2, 3, 4. Then the steric number is 4. Then the hybridization is 1 will be the s orbital and 3 will be the p orbitals. Then the hybridization is sp3. Mostly organic molecules have sp, sp2 और sp3 hybridization. We will discuss in the organic. ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक में हमको इतना ही जरूरत है. sp, sp2, sp3 इतने से काम चल जाएगा. ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमको डिटेल में और डिस्कस करना पड़ता है sp3d, sp3d2. ठीक है, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ते हैं. ठीक है, बट अगर उसको डिस्कस करूँगा तो हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक का पार्ट है ये हमारा छूट जाएगा. ठीक है, इसलिए अभी हम जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. हमारा काम अभी इतने में चल जाएगा. ठीक है, फॉर C2H4 we know that this is the alkene where there is a double bond. Then this is the structure.
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें 2-3 लेक्चर्स लग जाते हैं और हमारे उसका इतना काम का अभी है नहीं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पता हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, बट हमारे पास सभी दोनों कार्बन्स के लिए बता दो। ठीक है, इस कार्बन के लिए देखो तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड बनता है पिछली क्लास में, तो एक पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर 2 पाई बॉन्ड मिलकर एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, कार्बन नंबर 1 की, तो कार्बन नंबर 1 पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का 3 सिग्मा। कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा मतलब कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक एस का, बचे कितने, 2, तो कितने sp2 ऑर्बिट। तो मतलब हमको पता चल गया कि एल्कीन जितने भी डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2। अगर इस कार्बन की बात करूंगा तो इसमें भी कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2। क्योंकि हमने बता था कि हम पूरे मोलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी निकालते हैं, हम किसी एक एटम की निकालते हैं, सेंट्रल एटम की। ठीक है, तो इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाली, कितनी आई, sp2। अगर मैं बात करूँ इस मोलिक्यूल की C2H2, तो देखो C2H2 हमको पता है कि एल्काइन है, इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ओ सॉरी, फ्लो में ज़्यादा बोल गया। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसकी वैलेंसी देखो, 3 वैलेंसी है, बच्चे कितनी, 1। इसमें भी कितनी, 1। ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा तो बना नहीं सकता। तो वैलेंसी देखेंगे हम कितनी होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, अब देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड से हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और 2 सिग्मा मतलब एक s का ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और एक p का। तो C2H2 के अंदर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब देखो आगे हम कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनके एग्जांपल। आपको इसमें कोई ये नहीं पूछेगा इनका बॉन्ड एंगल कितना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, और ये भी हमारे पास GOC वगैरह के अंदर काम ज़्यादा आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। एक तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोई एलिन स्ट्रक्चर है, कुछ एलिन टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी बताना है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बताना है, कोई 2 रिंग फ्यूज्ड है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 NH2 C डबल बॉन्ड ऑफ NH2। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूरिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की बता देंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है E, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी। ठीक, चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले, फिर आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इस कार्बन की बात करूं मैं। ठीक, ये मेरे पास कार्बन, ये आपको पता है
ठीक है, और ये कार्बन है और ये कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन इनमें सब में लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है एक एक हाइड्रोजन लगाने के बाद, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कर लिया हमने, ठीक है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, ठीक है। अब देखो किसी भी कार्बन को उठा लो, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास सिमेट्रिकल है, कोई भी कार्बन उठा लो सब में एक जैसी बात है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन को उठाता हूँ, देखो इस कार्बन को उठाऊंगा तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2। अगर इस कार्बन की बात करूँगा तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा 2 और एक पाई बॉन्ड जहाँ अटैच है, एक सिग्मा ये रहा 3, ठीक है, मतलब एक ही बात है, इस कार्बन के लिए मैंने ये बना दिया और इसके लिए एक बना दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, पहले सिग्मा फॉर्म होता है फिर पाई फॉर्म होता है, ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें पहले एक सिग्मा फॉर्म होता है और फिर 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, किसी भी कार्बन के लिए निकालो, इस कार्बन के लिए निकालो तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, तो इस कार्बन के लिए कितना हो गया sp2, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की बात करो, इस कार्बन के लिए निकालता हूँ मैं, पहले देखो इस कार्बन के लिए पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, पाई बॉन्ड हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड मैटर करता है, वैलेंसी पूरी है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी ये क्या होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए मतलब sp, ठीक है, 2 सिग्मा मतलब sp, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 हो गया। इस कार्बन की बात करूं तो इसको मैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C H H, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमारे पास हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक S का 2 P का, कितना हो गया sp2, सेम CH2 ऐसा ही इधर है तो इसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो इस कार्बन की बात करी तो मैंने sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ऊपर अभी बात करके ही आया हूं मैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन पे इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन की, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी मेरे पास क्या है sp2, इस कार्बन भी की क्या है sp2, और इनकी तो आपको पता ही है, इसकी भी अभी निकाल लिया, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के साथ है तो भी क्या है sp2, क्या है sp2, जहाँ पे भी डबल पाई बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर फॉर्म होती है मोस्टली क्या है सब जगह sp2 है, ठीक है। ये आपको पता है कब काम आएगी, आप GOC पढ़ोगे ना रेजोनेंस, उसमें हर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए हर कार्बन की, हर नाइट्रोजन की, कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, हर जगह काम आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ बनता भी नहीं है, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा sp2 कैसे फॉर्म हुआ, बताने को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या फ़ायदा, अभी बॉन्डिंग के अंदर डिटेल में इसको पढ़ा जाता है सीक्वेंस में, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताता हूँ। अब मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा है भाई, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास पाई बॉन्ड से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, एक पाई बॉन्ड है बट इस पाई बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे पास मतलब किससे है, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2, क्या हो गई sp2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन की बात करता हूँ तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ठीक है ना, कितने बॉन्ड हो गए, एक इसके पास हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई
sp2। ठीक है, इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन पे क्या है, एक बॉन्ड ये रहा, दो बॉन्ड ये रहे, तीन बॉन्ड हो गए, बच गया कितना बॉन्ड, एक चौथा बॉन्ड ये रहा। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड करो, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक सीखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ, कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ। देखो दो हाइड्रोजन होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एक कार्बन के साथ, मतलब एक इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक बॉन्ड ये बना रखा है। ठीक है, कितना, तो हमारे पास दो बॉन्ड बना रखे, बचे कितने, दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम ऐसे हर स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इस कार्बन की बात करूँ तो अभी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप कर सकते हो। अब इसमें बात करो, इसमें बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है सभी। ठीक है, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमको पता है सिग्मा बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। ठीक है, कोई भी कार्बन उठा लो, जैसे इस कार्बन की बात करूँ मैं, इस कार्बन की, तो एक सिग्मा ये रहा और तीन हाइड्रोजन इसके खुद के हैं ही, तो चार बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा, तो तीन और एक चार सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन की बात करूँ मैं, देखो इस कार्बन की, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दो सिग्मा बॉन्ड, बचे कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ठीक है, इस कार्बन की बात करूंगा तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तीन सिग्मा बॉन्ड है, बचे कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे इसमें एक हाइड्रोजन, कितने, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है, बच्चे कम है, दो हाइड्रोजन लगा दो। अब जितने हाइड्रोजन हो उतने गिन लेना। ठीक है, तो इस तरह प्रकार हमारे पास स्ट्रक्चर की क्या आ गई, हमारे पास स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने, 5-6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन की एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, दो बॉन्ड ये बना रखी इसके साथ, दो बॉन्ड इसके साथ, चार बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लो कुछ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास। ठीक है, तो इसको पता है आपको, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि इन सब की पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, तो इन सब में तो क्या है, sp2 है, सभी कार्बन्स क्या है, sp2 है। चलो अब हम इस स्क्वायर की बात करते हैं। इस स्क्वायर की बात करूँ तो मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ये देखो, एक बॉन्ड इसके साथ, दो बॉन्ड इसके साथ, तीन बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड बच गया, कितना बॉन्ड बच गया, एक, वैलेंसी 4 होनी चाहिए, एक बॉन्ड बच गया। अब देखो एक बॉन्ड लगा दो, इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की बात करेंगे तो देखो दो बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, कितना बॉन्ड कम, एक बॉन्ड। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को लिख लो। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड हैं। इस कार्बन की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड, तीन बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड थे, तीन सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अंदर एक बात और बताओ, कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चलो इसको मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। sp2 कार्बन और sp2 कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ। तो देखो एक ये रहा है ना, ठीक है,
एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 9 बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से आपको बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है कार्बन sp2 कार्बन sp2 के बीच में। ठीक है, हमारे पास पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, तो हमको पता है कि इन सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ठीक है, और इन दोनों कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली है? sp2। तो टोटल पूरे स्ट्रक्चर sp2 है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हर किसी के पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बट हमको कैलकुलेट किसके किसके करने? कार्बन कार्बन के बीच में कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 3, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 4, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 5, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 6, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 7, ये भी कार्बन कार्बन है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 8, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 8 और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 9। कितने बॉन्ड हो गए भाई? टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, कार्बन कार्बन के हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन पूछता ना तो अलग होते। अभी हमने किसके किसके निकाले हैं? कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखो इसके बारे में बताएंगे। तो इस कार्बन की बात करूं तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना रखा है बच्चे, कितने? 3 बॉन्ड। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है बच्चे, कितने? 3 बॉन्ड। इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक बॉन्ड ये बना रखा, एक बॉन्ड ये बना, कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन ये रहा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? 4 बॉन्ड हो गए, तो sp3। ठीक है, इसकी भी कितनी होगी? sp3। इसकी भी कितनी होगी? sp3। इसकी भी कितनी होगी? sp3। सभी के sp3 हो गई। ठीक है, क्योंकि सभी में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन थी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पता चला होगा। ठीक है, कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी s और p। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब इसमें एक s की होगी, बची कितनी? 2 p की होगी, तो sp2। ठीक है, और 4 बॉन्ड है तो हमारे पास कितनी होगी? 3 sp3। ठीक है, sp का आपको पता है 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, 180 डिग्री आपको पता है, ऐसे 180। sp2 का बॉन्ड एंगल आपको पता है 120 होता है। sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? उनके बॉन्ड एंगल होते हैं कि कितना बॉन्ड एंगल है। ये सब बातें बॉन्ड एंगल वगैरह सब इनऑर्गेनिक में, फिर वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यही सब बता देंगे। हमारे तो ऑर्गेनिक में इसमें काम बहुत कम होता है। ठीक है, जितना आता है वो हमको पता होता है। तो ये सब बातें इसलिए हमने इतना बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ी कि सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और इस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्विक समरी हो गई पूरी वीडियो की, ये बात पढ़ी। और हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके अंदर एक सिग्मा होता है, इसके अंदर भी एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और पाई की कोई वैल्यू नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा और पाई का नहीं, सिग्मा और लोन पेयर का होता है। और इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो इन पाइस की कोई वैल्यू नहीं होती। और एक इम्पोर्टेंट बात हो कि हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को देख लो बस, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स को। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट कहानी थी इस वीडियो की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर यंगर वंस। ठीक है, like the video. Okay, thank you, have a good day.